Hey students, welcome to Exact Mathematics. Today we are going to discuss the most important topic, polynomials. Yes, it is very important, not for this class but for coming higher classes also, 10th plus 1 plus 2 onwards. You can say this is the backbone of our higher classes mathematics. So we will discuss what is polynomial, what such types are there, what content we will discuss here. That full polynomial, any algebraic expression in the form of this is a polynomial, but where n, so n means I am saying here power. Yes, जो इसकी पावर है मैं उसकी बात कर रहा हूं. n is non-negative integer. Second, coefficients. अब coefficients हुआ a0, a1, a2, an onwards. All these are real numbers. You know real numbers, rational and irrational together is considered as real numbers. So these two main conditions are there for a polynomial. Most important यही है कि जो इसकी पावर है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर और वी कैन से होल नंबर्स होनी चाहिए. तो लेट अस स्टार्ट विद सिंपल एग्जांपल्स. 2x plus 1, 3x minus 2 plus x cube plus 5, 1 by x minus 2 plus 5x plus 6, 1 by x square plus 3x plus 2. Now out of these, which is polynomial or which is not? Now here, check out variable x. इसकी पावर 1 है, तो it means ये polynomial है. और ये here power is minus 2, so it is not polynomial. And here, अब आप ये चेक करोगे नहीं, इसको सिंप्लीफाई करो. कहने का मतलब ये जो टर्म है ना, ये जो एक्सप्रेशन है ना, ये न्यूमरेबल है, मींस न्यूमिरेटर में है. तो इसको हमें न्यूमिरेटर में शिफ्ट करना पड़ेगा और ये बन जाएगा x की पावर 2. तो दिस इज 2, here we have power 1. This is a normal constant term, I will discuss later. So this is a polynomial. Now here, this is in denominator and obviously here we have positive terms, positive powers. So this is not polynomial. So simply polynomial is this where power of variable should be whole number or non-negative integer. Next, types of polynomials. अब ये बड़ा important aspect है. Here we have two base, means we divide polynomial in two parts on the basis of degree, on the basis of terms. So first I'll discuss with terms. Now, what is the meaning of a term? In previous classes, you have done about expressions. Plus or minus. Divide the expression into terms. Yes. So here we have two terms. Suppose we have this. This is the combination of multiply. So there is only one term because we don't have any plus sign between them. We don't have any minus sign, so this is a single term. So according to terms, if there is one term, that is called monomial. If there are two terms, that is called binomial. If there are three terms, that is called trinomial. And more than three, there is no any specific name. That is considered as a polynomial also, because there is
no specific name for this. Now in this is monomial, this is monomial, this is monomial because we have only single term. And binomial, here we have two terms, क्योंकि प्लस आ गया, टर्म्स को अलग अलग कर दिया. चेक कीजिए, यहां पे प्लस आ गया तो दो टर्म्स, प्लस और माइनस डिफरेंशिएट. देन ट्राइनोमियल वी कैन से लाइक दिस, माइनस प्लस दो आगे, तीन टर्म्स को अलग अलग कर दिया. तो दिस इज द concept of a basic monomial, binomial, trinomial. Already you have studied in previous classes, but this is the main according to degree. We'll discuss that. First, what is the degree? Highest power. Obviously, we'll write here variable, because when we talk about polynomial, we discuss about one variable, either x or y. I have taken that examples just to make you understand and clarify about only terms monomial and binomial. But when we talk about polynomial proper, so that is in the single term x or y or whatever they can mention. Now according to degree, 1 degree, this is the standard form and it is called linear polynomial. But one condition is here. What is that? One term, leading term. अब लीडिंग टर्म क्या होती है? लीडिंग टर्म होती है दैट टर्म विद हाईएस्ट पावर. यस, पूरे पॉलिनोमियल में जिस टर्म की हाईएस्ट पावर हो, दैट टर्म इज कॉल्ड लीडिंग टर्म. और जो लीडिंग टर्म का कोफिशिएंट है, ये कंडीशन है दैट शुड बी नॉन जीरो. क्यों? अगर यही जीरो हो गया फिर तो ये लीनियर बनेगा ही नहीं ना. इसीलिए सिंपल, अगर पावर 2 है, दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल and standard form is px is equal to ax square plus bx plus c. But what is the condition? A should be non-zero. 3 power, that is called cubic polynomial and the standard form is ax cube plus bx square plus cx plus d, where a is non-negative. Same with power 4, that is biquadratic polynomial and the standard form is, क्योंकि आपके सिलेबस में ऐसे ही है, उसके बाद अगर चलेंगे तो 5 is called quintic, then 6 is quantic, but no need. 4 is there, more than 4 is considered as a polynomial. So this is the basic concept. What is polynomial? How many types or which type is there? So this is the basic. Now we will discuss it's a further new topic, zeros of polynomial. Zeros of polynomial, अब ये नेम ही बता रहा है. तो अगर मैं सिंपल नेम से बात करूं तो पॉलिनोमियल की जीरोस, तो इसका मतलब क्या है? लेट मी स्टार्ट. I am taking one simple linear polynomial, this. So what is the meaning of this? कि value of x which makes polynomial zero, that is zero of x. कहने का मतलब x की, that variable की कौन सी वैल्यू हमें मिले कि वो वैल्यू रिप्लेस करने के बाद ये जीरो बन जाए, तो दैट इज कॉल्ड जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल. अगर मैं रफली लेके चलूं, सपोज हमने x को जीरो रिप्लेस किया, तो x का जीरो रिप्लेस किया, तो दिस इज -1. ये जीरो नहीं बना तो जीरो पॉलिनोमियल जीरो नहीं है. अगर 1 रिप्लेस करेंगे, जीरो यहां पे बन गया. तो इट मींस 1 इज
जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। सेम यू कैन रिप्लेस 2 3, वो जीरो नहीं बनेगा। गेटिंग द पॉइंट? तो इस अकॉर्डिंग ये करेंगे। एक दो एग्जांपल्स में और लेके चलता हूं। सपोज आई एम टेकिंग क्वाड्रेटिक, ठीक, तो x को जीरो रिप्लेस करें, तो जहां जहां x है जीरो रिप्लेस किया। नाउ दिस इज 3, x को 1 रिप्लेस करें तो वी हैव दिस, सॉल्व किया, जीरो, यस। नाउ 2 रिप्लेस करें, दिस इज 4 माइनस 8 प्लस 3 माइनस 1, ये भी नहीं है। 3 भी रिप्लेस करते हैं, here. तो at 1 and 3 means if we replace x1 and x3, we got this polynomial 0. So it means 1 and 3 are zeros of this polynomial. अब एक क्वेश्चन जो माइट भी आपके माइंड में आए कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि कितनी जीरोस फाइंड करनी है ना। तो देयर इज वन लॉजिक एंड फॉर्मूला, जितनी आपकी पॉलिनोमियल की डिग्री है उतनियां ही जीरोस होंगी। यस, तो अब लीनियर की 1 डिग्री तो जीरो भी 1 होगी। क्वाड्रेटिक डिग्री 2 तो जीरोस भी 2। क्यूबिक डिग्री 3 तो जीरोस भी 3। बाय क्वाड्रेटिक डिग्री भी 4 एंड जीरोस आर ऑल्सो 4। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ जीरोस। अब हम थोड़ा सा जो हमारे क्वेश्चंस हैं, आई टेक सम एग्जांपल्स ऑफ दैट क्वेश्चन टू मेक इट मोर क्लैरिफाइड। Here we have 2 examples in front of you. Now the question, if x is equal to 2 is a zero of this. तो अब देखिए, अब तक हमने क्या किया था, हमने फाइंड की थी जीरोस क्या कौन सी है कौन सी नहीं। We replace the values. If the full value of polynomial becomes 0, that value is called zero of polynomial. Am I right? Now ये मेंशन हो गया कि ये जीरो है, तो सिंपल लॉजिक, इफ दिस इज द जीरो तो P2 इज जीरो, मींस x को 2 रिप्लेस किया, सारी वैल्यू जीरो आ जाएगी। तो वेयर वी हैव x रिप्लेस जीरोस, इज इक्वल टू 0। 8 minus 6 plus 7 is equal to 0. 2 plus 7 is equal to 0. सिंप्लीफाई किया तो आवर आंसर इज -2/7। अब एक और क्वेश्चन, ये रहा पॉलिनोमियल, हमने ये फाइंड करना है। अब ध्यान से देखिए, यहां पे 2 है, यहां पे -1 है, तो इन प्लेस ऑफ x पहले हम 2 रिप्लेस करेंगे, तो वी हैव 2 स्क्वायर -4 2 प्लस 3, 4 minus 4 plus 3, अपन के पास आ गया 3, है ना। अब -1, तो इन प्लेस ऑफ x -1 रिप्लेस कर दिया। 1 plus 4 plus 3 दैट इज इक्वल टू 8। तो फिर ये वैल्यू क्या आ गई, 3 minus 8, our answer is -5. So in this way we have to solve the topic. And one more last topic is linear growth और decay. अब ये क्या है, ये वर्ड फेमिलियर है, अभी हमने बात की थी, yes, that we have linear polynomial with degree 1, yes, so that is there. अब इस टॉपिक में
लीनियर पॉलिनोमियल के अगर मैं सिंपल बात करूं तो ग्राफ की बात की गई है. यस, ज्योमेट्रिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल. अगेन वन क्वेश्चन, it is always a straight line. Yes, straight line means question is graph of linear polynomial is always straight line. अब वो straight line कैसे भी हो सकती है, it depends what polynomial we have. Is it okay? The most important, a, we have already discussed about a कि ये लीडिंग टर्म है, उसका जो कोफिशिएंट होगा दैट विल बी लीडिंग कोफिशिएंट. गॉट इट? तो ये हमारी कंडीशन थी कि ये नॉन जीरो है. आई टोल्ड यू. तो अब अगर ये नॉन जीरो है, या तो ये पॉजिटिव होगा या ये नेगेटिव होगा. गेटिंग? सही है. तो अब जो ग्राफ है, ये और ये दोनों में डिफरेंस क्या है अब मैं बताता हूं, ध्यान से सुनो. अब सिंपल लॉजिक है. ये जा रहा है, इधर वैल्यू इंक्रीज हो रही है, इधर वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो इस तरफ ग्राफ इंक्रीज हो रहा है, तो इट इज कॉल्ड ग्रोथ. एक वेरिएबल इंक्रीज हुआ, दूसरा इंक्रीज हुआ, उससे ग्राफ असेंडिंग इंक्रीज हुआ, तो फिर ये क्या होगा? डिके, डिक्रीज हो रहा है. गॉट इट? तो इन दिस चैप्टर, इन दिस टॉपिक, लास्ट टॉपिक, वी विल डिस्कस अबाउट ग्रोथ एंड डिके. ग्राफ बनाना है, दैट यू आर डिस्कसिंग इज ऑलरेडी इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. ग्राफ हमने बनाना है और उसके बाद सॉल्व करना है. आई विल टेक वन एग्जांपल. सपोज वी हैव px इज इक्वल टू x माइनस 1. तो एक सिंपल बात, हमें पता है इट्स ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, और लाइन बनाने के लिए 2 पॉइंट्स चाहिए हमें मिनिमम. तो वी फाइंड 2. तो व्हाट वी विल डू, आई टेल यू वन थिंग. ये हुआ हमारा x एक्सिस, इसको हम y एक्सिस लेके चलते हैं. एम आई राइट? एम आई राइट ना? तो वी कंसिडर px एज ए y. तो y इज दिस. पहली बात, वी हैव टू फाइंड 2 पॉइंट्स. वो आप जो आपका दिल करता है यू कैन फाइंड. पर्सनली अगर मेरे से बोलो, वन टाइम टेक x 0, x को 0 रिप्लेस किया, माइनस कोई भी दो वैल्यूज, एक you can take x1 minus 1 2 minus 2, that is on you. 1 by 2 2 by 3 minus 2 by 3, that is on you. Even you can take value of y also, 0 1 2 3 minus 1 minus 2 2 by 3. It is completely on you. कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर में. ये आ गया. तो पहला पॉइंट आ गया यहां से, that is x0 y minus 1. दूसरा पॉइंट आ गया यहां से, that is x1 y0. तो ग्राफिंग, सपोज दिस इज 1, दिस इज 2, जस्ट नॉर्मली आई एम टेकिंग 0 minus 1 नीचे जाना पड़ेगा, ये रहा, समथिंग लाइक हेयर 1 0 हेयर ग्राफ. अब ये देखिए, जैसे जैसे ये इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे ये इंक्रीज हो रहा है, तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग इफेक्ट ये इंक्रीज हो रहा है, ये ग्रोथ दिखाएगा, ग्रोथ दिखाएगा. पहला बात. अब मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं, हमने लास्ट पेज पे डिस्कस किया था ए पॉजिटिव ए नेगेटिव. अगर ए पॉजिटिव है तो ग्राफ हमेशा असेंडिंग जाएगा, ग्रोथ होगी. और अगर ये नेगेटिव है तो देयर विल बी ऑलवेज डिके डाउनवर्ड्स. यू कैन चेक. इज इट ओके? अब लास्ट क्वेश्चन. स्टार्टिंग में जब हमने जीरोस की बात की थी तो मैंने एग्जांपल ली थी, तो हमने क्या किया था
x को 0 रिप्लेस किया, 1 रिप्लेस किया, 2 रिप्लेस किया, जिस पे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ गई हम वो लेते। अब क्वेश्चन आएगा सर ऐसे कितनी हम फाइंड करें, हम कितना रिप्लेस करते जाएं, ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगी। हाँ, यहाँ पे एक ऑप्शन है, तो आप क्या कर सकते हो, व्हाट यू कैन डू, इसको 0 रिप्लेस कर दो और यहां से x की वैल्यू फाइंड करो। जो x की वैल्यू आप फाइंड करोगे दैट विल बी 0। ये देखिए, अब हमारा यहां पे पॉलिनोमियल था x माइनस 1, तो कहने का मतलब, अब मैं सारे को सम अप कर रहा हूं, कंबाइन कर रहा हूं समझाने के लिए। हमारे पास आ गई 0 आ गई सबसे पहले, ठीक हुआ। अब ध्यान से सुनो, एक आ गया ग्राफ, दो चीजें आई है, ठीक। 0 का पता चल गया कि पॉलिनोमियल को 0 के साथ रिप्लेस करेंगे, जो भी आ जाएगी x की वैल्यू दैट इज द 0। अब ग्राफ में स्पेशलिटी बताता हूं, ग्राफ x एक्सिस पे जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, दैट इज द 0। तो जीरोस की दो डेफिनेशंस हो गई। पहली कि x की वो वैल्यू जिससे पॉलिनोमियल 0 बनता है, फर्स्ट। सेकंड, अगर ग्राफिकली बात करें तो जहां पे वो ग्राफ x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा where that will be the 0। अब मैं छोटी सी एक एग्जांपल लेके चलता हूं। सपोज ग्राफ ने यहां पे इंटरसेक्ट किया है, तो क्लियर है -1 इज द 0, और इसको इस तरफ ले जाओ, इसका पॉलिनोमियल अप्रॉक्सीमेट ये होगा। तो दोस्तों, बच्चों, स्टूडेंट्स, ये था जस्ट अ बेसिक कॉन्सेप्ट और जस्ट इंट्रो ऑफ योर polynomial. Thank you.